Good evening, everyone. So today's class is very important because today we discuss some very important numerical. So obviously, आज तुम लोग ज्यादा काम करोगे, मैं कम काम करूंगा. So from the previous class, we already complete lens formula, lens maker formula. We see some numerical related to lens formula and lens maker formula. Then we go through some numerical where if we change the medium, means both medium are not same, although it's a thin lens, then we realize that we can go through or we can use the basic formula, that is refraction by the curved surface. And then we again see if the lens is not thin, lens is a thick lens, then also we use refraction by the curved surface. And then we solve some numerical or and theory that what it say, combination of lens, combination of lens. And then again we see ki the lenses must be thin and no gap between them. If you have some gap, then what happened, then the image of the first lens behave like a object on the second lens and all. In previous class we see numerical for the combination of lens and no gap between them. So now first we see that the combination of lens with gap, and then we try to solve some numerical related to lens mirror combination, lens plane mirror combination, are very simple questions. And so, and then in the next class, means tomorrow onwards, we start a very important part of this one, that is what you can say, optical instrument. Very important. So today's class is very important in terms of numerical asked in entrance as well as board exam. So my first numerical from sheet, question number 59. The question is that you have three lens. These all are the three lens. Lens one, this is question number 1 we discussed today. First question. And we have a convex lens and we have a convex lens. Convex, concave, convex. The focal length of the first lens is 6 centimeter. Focal length of the second lens is 12 centimeter. Sorry, 6 centimeter. And focal length of the third lens is 12 centimeter. I just want to check it once because there is some conversion. কোথায় আছো গুরুদেব আমি জানি না, किथे गयो, हाँ एकदम right, 12 centimeter. Now you have an object AB. The distance of the object from the lens is 24 centimeter and the height of the object is given 9 centimeter, and distance between the first two lenses 4 centimeter, and distance between the second and third lenses 6 centimeter. Is it clear to all of you? What you have to find out? You have to find out the final, you have to find out the height of the image and also position and nature of the image. Is it clear, everyone? You all understand what is the question? An object is placed 24 centimeter from the first lens. So you can suppose this is as a U1, you know the focal length. They just give you the value, you have to decide it. For convex it is positive, for concave it is negative. For convex it is positive. Between the first two lens, the distance, the gap is 4 centimeter. Between the second and third, the gap is 6 centimeter. You have to find out the height, nature and position of the final image. Is it clear? Yes, sir. So how you solve it? Very simple. This is the first object distance. You have a focal length, you can find out the image distance. Now image of the first lens behave like an object for the second lens.
Again, you find out the image of the second lens. The image of the second lens behave like an object for the third lens and so on. We can find out the magnification first. When you get the magnification, then height of the image by height of the object, you get the height of the image, and with respect to the position, you can say how much magnified where the object is and all these things. So I give you 2 minutes for that, 2 to 3 minutes for that, and your time starts now. Okay, so first we use 1 by v1 minus 1 by f u1 equals to 1 by f1. This one is positive. We don't know v1. u1 is minus 24 and f1 is plus 6. So what we have, 1 by v1, 1 by 6 minus 1 by 24, 24 6 6 12 12 12 24 4 minus 1 3 by 24, so 8 8 16 8 centimeter. So the image is formed, obviously inverted image at here, I1. Now from here, the distance is 8 centimeter and the gap is 4 centimeter. So what is the distance from this one? U2 is how much? U2 is how much? 8 centimeter. हाँ? 8 कैसे? centimeter. ये 4 centimeter 8 है. centimeter. 4 centimeter. Plus or minus? Plus. Plus 4 centimeter. Very good. And that's why the image is virtual. Object is virtual. So now for the second one, we use 1 by v2 minus 1 by u2. That is 1 by f2. So v2 we don't know, but u2 we know plus 4 and f2 is minus 6. So 1 by v2 minus 1 by 6 plus 1 by 4, 12 minus 2 plus 3. So 1 by 12, v2 is 12 centimeter. So again, v2 is dotted line I2. So from here, v2 is 12 centimeter. So what about the u3? 6 centimeter. 6 centimeter, because the gap between the second lens and the third lens is 6 centimeter. So you can say u3 is plus 6 centimeter. 1 by v3 minus 1 by u3 is 1 by f3. v3 you don't know, u3 is plus 6 centimeter and f3 is 12 centimeter. So 1 by v3 is 1 by 12 plus 1 by 6, that is 12. 1 plus 2, 3 by 12, that is 4. v3 is 4 centimeter. So what do you mean by v3 is 4 centimeter? It is real and here I3 final image. Is it clear? Yes, sir. Now it's inverted or not, with respect to that, we can say that actually from this calculation, M1, M2, M3. And magnification is V by U. So we can say for the first lens, V1 by U1, second lens, V2 by U2, third lens, V3 by U3. Is it okay? Yes, sir. So what about V1? V1 you calculate 8 centimeter. What about U1 minus 24? What about V2 12 centimeter plus? What about U2 4 centimeter plus? What about V3 4 centimeter plus? What about U3? U3 is plus 6 centimeter. So 4 cancel this 2, 8 16 24 minus 2 by 3. Dekho minus the with respect to this, the final image is inverted, and as the final image is positive, that means this side is real. The final image is real, diminish, inverted 4 centimeter from the third lens. And if you want to find out the height of the image, so height of the image by height of the object, height of the object is given 9 centimeter. The height of the image is minus 2 by 3 into height of the object minus 2 by 3 into 9 centimeter.
that is minus 6 centimeter. Is it clear? Minus mane inverted. Okay, everyone, is it okay? Yes, sir. Sandipan de din pore. Okay, now the second very important question is, yes. Is it okay for everyone? Yes, sir. Then we move on Yes, sir. to the second question, which asked in CBSE board exam, I think 4 or 5 times. This type of question, they just change the data. So my second question, right? Question number 2 we discussed today. Second question is that you have 3 lens, lens 1, lens 2, and lens 3. Lens 1, lens 2, lens 3. Each focal length 20 centimeter. And the object is placed, a point object is placed 40 centimeter from the first lens, and final image is formed 20 centimeter from the third lens. Is it clear, everyone? Is it clear, everyone? Yes, sir. Sir, one. Yes, sir. ऑब्जेक्ट बोलो। लिख दिया Object 40 centimeter पे है. Sorry, final image. I'm sorry. Final image is at 20 centimeter. Clear now? Yes, sir. Question is that what is the distance between lens L1 and L2? What is the distance between the lens L2 and L3? Distance between lens L1 and L2 कितना है? Distance between lens L2 and L3 कितना है? That you have to find out. Tell me. I'm stopping the recording. फालतू का. Anyone tell me what is the answer? Hello. Any idea? Anyone? Debojit? Debojit? হ্যাঁ স্যার এটার পুরো এখনো দেখিনি সব টপিকস এর ভিডিওগুলো একটু अच्छा অসুবিধা হচ্ছে उत्कर्ष देखो, जब भी ऐसा सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन देगा ना, उसमें कुछ क्लू रहेगा, ये मैं पहले से बोल देता हूं. तो देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ. ईच फोकल लेंथ कितना दिया है? सर एक मेरा डाउट है सर, ये जो लेंस थर्ड है इसके लिए तो हाँ. सर U3 0 हो जाना चाहिए क्योंकि इमेज डिस्टेंस भी 20 और ये भी 20. मुझे पहले बोलो फोकस कितना है? 20 सेंटीमीटर दिया है. इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? पैरेलल आ रहा है. रे पैरेलल आ रहा है. वेरी गुड. तो रे पैरेलल आया. तो अगर रे पैरेलल आएगा तो ये यहां से आएगा, मतलब ये 20 सेंटीमीटर है, कोई शक? लेकिन ये बोला है 40 सेंटीमीटर, और इसको हम बिना कैलकुलेशन का भी कर सकते हैं. देखो, अगर ये 20 है, ये अगर 40 है, तो f का डबल है 2f, तो ये भी 40 होना चाहिए. सर वो तो निकल गया 40 आया था. तो अगर ये 40 है, ये 20 है, तो ये कितना है? 60. और ये क्योंकि पैरेलल रे है तो एनी डिस्टेंस, पैरेलल रे का एनी डिस्टेंस अप टू इंफिनिटी. समझ में आया?
is it okay? Hello, Yes, sir. everyone, you understand? अब देखो नेक्स्ट Yes, sir. क्वेश्चन। सीबीएसई बोर्ड में ऐसा जितना क्वेश्चन है ना, सब में थोड़ा थोड़ा ट्रिक है। हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का जितना क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा ट्रिक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, in the following diagram an object O is placed 15 centimeter from a convex lens of focal length 20 centimeter। दो लेंस है, ये लेंस 1 कॉन्वेक्स है, फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर। अच्छा, एंड द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड at a distance 80 centimeter from the second lens। तुम्हारा पास एक सेकेंड लेंस है जिससे फाइनल इमेज जो है वो 80 सेंटीमीटर पे है, ठीक है, और ये दोनों का बीच का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? Yes, sir. So the question is that what is the focal length of lens 2? What is the focal length of lens 2? This is the question. Is it clear? Is Yes, it sir. clear? तो देखो सबसे पहले मेरे पास u है, v है, f है। क्या मैं v1 निकाल सकता हूँ? 1 by v1 minus 1 by u1 is 1 by f1। v1 we don't know, u1 is minus 15 centimeter, f1 is plus 20 centimeter। So 1 by v1 1 by 20 minus 1 by 15, so ये कितना हो गया 60, ये हो गया 3, ये हो गया 4, so 1 by 60, v1 हो गया minus 60 centimeter। Is it okay? Is it okay? Yes, sir. So tell me, if the minus 60 centimeter, so which side the image form, this side or this side? Left side. लेफ्ट साइड। एक और बात देखो, फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट है 15 सेंटीमीटर, मतलब विद इन फोकस एंड पोल, तो इमेज इज वर्चुअल, तो इमेज फॉर्म हुआ यहाँ पे I1 कितना 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस 1। सो फ्रॉम लेंस 2 व्हाट इज द डिस्टेंस? 80। अब तुम खुद ही डिसाइड करो। देखो हर क्वेश्चन में ये अगर 80 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट 80 पे है, इमेज भी 80 पे है, तो ऑब्जेक्ट और Parallel इमेज है। सेम डिस्टेंस, नहीं, ऑब्जेक्ट एंड इमेज सेम डिस्टेंस में कब होता है? Center of curvature Object is and image का, हाँ, Sir, 2C पे center 2C. of curvature is उसी नहीं, सी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वेरी गुड। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर या 2f फोकल लेंथ पे है, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो मतलब ये 2f है, ये भी 2f है, तो फोकल लेंथ क्या होना चाहिए? हाफ, मतलब 40 सेंटीमीटर होना चाहिए, है कि नहीं? बोलो। Yes, sir. और अगर इसमें दिक्कत हो रहा है कि शायद ऐसा नहीं हो, तो कोई बात नहीं, मेरे पास फॉर्मूला तो है। 1 बाई फाइनल इमेज इज 80 माइनस 80 इक्वल्स टू 1 बाई f2। तो 1 बाई 80 प्लस 1 बाई 80 इज 1 बाई f2। सो 80 टू 1 बाई f2। तुम चाहो तो इसको डायरेक्ट लिख सकते, थोड़ा टाइम बचा सकते हो, और नहीं तो करके दिखा दो, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। Yes. यस सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर is placed coaxially with a convex mirror of focal length, radius of curvature, convex radius of curvature r/2, radius of curvature दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अच्छा, हम सबको मालूम है कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो 20/2 मतलब 10 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. Radius of curvature 20 centimeter,
the two are kept 15 centimeter apart. मतलब सीधा बात है, तुम्हारा पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉन्वेक्स मिरर है, दोनों का बीच का डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है? A point object is placed 40 centimeter in front of the convex lens. अरे साला 1 मिनट दारा दरजा लागाया सी। My goodness. अच्छा, is it okay? Two objects, a point object placed 40 centimeter in front of the convex lens. Find the position of the image formed by this combination. Draw the ray diagram showing the image formed. तो देखो, रे डायग्राम सबसे लास्ट में करना है, सबसे पहले मुझे करना है फाइनल इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो देखो, मुझे 40 मालूम है, ये 20 मालूम है, तो मैं सीधा बोल सकता हूँ क्या कि इमेज जो फॉर्म होगा 40 सेंटीमीटर इधर होगा। इज इट क्लियर? इमेज जो है यहाँ पे फॉर्म होगा, इमेज 1, ये भी 40 सेंटीमीटर होगा। ये ठीक है बिना पेन पकड़े हुए? इज इट ओके? ये भी 40, ये भी Yes, 40 sir. क्योंकि फोकल लेंथ 20 है ना? और बेटर होगा एकदम सेम डिस्टेंस लो, तब ज्यादा अच्छा दिखेगा। ये हो गया मेरा। तो अगर ये मेरा काम हो गया, इसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और ये 15 है, तो ये कितना होना चाहिए? 25 है कि नहीं? और ये क्या हो गया? U2? यस और नो? Yes, sir. पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। कैसे नेगेटिव? रे इधर आ रहा है, Positive. ये ऑब्जेक्ट है, रे इधर इधर जा रहा है और इमेज हुआ इधर है, तो ये पॉजिटिव हुआ ना? यस तो Yes, U2 sir. पॉजिटिव है, तुम्हें F2 मालूम है, V2 चाहिए, मिरर फॉर्मूला लगाओ। यही फॉर्मूला है ना? Yes, sir. V2 नहीं मालूम, U2 मालूम है 25, F2 Yes, भी sir. मालूम है 10। सो V2 हो गया 1/10 माइनस 1/25, 50, 5 माइनस 2, 3/50, मतलब V2 इज 50/3 सेंटीमीटर, प्लस और माइनस? प्लस और माइनस? प्लस, तो रियल और वर्चुअल? हाँ, रियल। क्या बात कर रहा है? मिरर का इस साइड हमेशा वर्चुअल, प्लस है तो याद रखना, मिरर का इस साइड हमेशा वर्चुअल। तो यहाँ पे इमेज भी वर्चुअल, मतलब इसका जो इमेज फॉर्म हुआ इसके लिए इसका ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल, इमेज भी वर्चुअल। इज इट क्लियर? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. 50/3 25 से कम है कि ज्यादा है? कम है। थोड़ा आगे करो, थोड़ा आगे कर दो। अब मैं रे डायग्राम बना रहा हूँ। देखो, पॉइंट बोला है तो ऐसे करके स्ट्रेट मारो। अब इसका साथ इसका यहां तक स्ट्रेट आया, ये आया डॉटेड, यहां तक स्ट्रेट आया, ये आया डॉटेड। क्लियर हुआ? Sir. अब देखो, यहां से ये आएगा डॉटेड क्योंकि यहाँ पे है नहीं, और इसको मार दो स्ट्रेट, ये आएगा डॉटेड और ये मार दो स्ट्रेट। हो गया, समझा? Yes, sir. मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, तो ये डाइवर्ज कर गया। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसके बाद देखो एक क्वेश्चन, अच्छा एक और क्वेश्चन था प्लेन मिरर का, उसको पहले करा के लास्ट में क्वेश्चन में रखूंगा। एक कहाँ गया ये क्वेश्चन? अरे यार, यहाँ का था कि वहां का था? जस्ट एक मिनट, रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। सर ये वाला जो क्वेश्चन अभी आप करवाए सर, ये शीट से था? नहीं, ये सब जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है,
जो तुम्हें एसएल अरोड़ा या एग्जाम आइडिया सब बुक में मिल जाएगा। देखना कॉम्बिनेशन को बोल के बहुत सारा क्वेश्चन है। हाँ ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये एसएल अरोड़ा का है, क्वेश्चन नंबर 86 एसएल अरोड़ा का नया बुक का पेज नंबर 9.64 में भी थोड़ा इधर उधर हो सकता है, खोजने से मिल जाएगा। क्या बोला है, a convex lens of focal length 20 centimeter has a plane object has a point object on its principal axis at a distance of 40 centimeter from it. A plane mirror is placed 30 centimeter behind the convex mirror. Locate the image. कितना आसान सब क्वेश्चन है। देखो एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और इससे ठीक 40 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट है, मतलब सीधा बोल रहा है उल्टा साइड में होगा, और यहाँ पे एक प्लेन मिरर है जो कि 30 सेंटीमीटर पे है। तो तुम्हें क्या बोला गया है, तुम्हें बोला गया है फाइनल इमेज कैलकुलेट करो। ये बोला है 40 सेंटीमीटर। देखो इससे आसान ये सब क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन देगा, तुम्हारा टाइम सेविंग है। देखो 40 बोला है सेंटीमीटर, सो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, 40 सेंटीमीटर में फॉर्म होगा कि नहीं बोलो। हाँ अगर Yes, ये sir. मिरर नहीं होता तो यहाँ होता, क्योंकि मिरर है तो ये वाला कहाँ पे फॉर्म होगा, इधर। फाइनल इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, कितना, ये 10 सेंटीमीटर। सो 30 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस वन और 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस वन। इज इट क्लियर? Yes. समझ में आया क्वेश्चन? Yes, sir. एकदम आसान क्वेश्चन था। देवजीत बुझते पेरेছিস? हाँ सर। उत्कर्ष? सर समझ तो आ गए सर, पर क्वेश्चन क्या था और आंसर क्या था समझ ही नहीं आया। देखो तुरंत ही क्वेश्चन खत्म है एक ऑब्जेक्ट है 40 सेंटीमीटर पे, ठीक है। यस सर। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। पूछा क्या था सर? हाँ दिया हुआ है। एक प्लेन मिरर है जो कि 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। हाँ फाइनल इमेज कहाँ फॉर्म होगा, और चाहो तो ये पूछा रे डायग्राम क्या होगा। ठीक है यस सर। ओके। तो देखो जहां मेरा 40 से फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डबल होगा, और स्पेशली कॉन्वेक्स लेंस है, जहां ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स के लिए, कॉनकेव के लिए नहीं भी हो सकता है, हाँ, लेकिन कॉन्वेक्स अगर है, ऑब्जेक्ट डबल ऑफ द फोकस है, तो इमेज डबल ऑफ द फोकस में ही होगा। मतलब इफ द ऑब्जेक्ट इज एट सी, इमेज फॉर्म्ड एट सी, सी मतलब 2f। तो देखो यहाँ पे 40, तो इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा 40 सेंटीमीटर, क्योंकि 20 का डबल 40 है ना। Yes, sir. और ये दोनों का बीच का डिस्टेंस 30 है, मतलब 30 के बाद का जो 10 सेंटीमीटर है वो क्या होगा, डॉटेड लाइन होगा। Yes. Yes, sir. और मिरर के लिए इधर वाला कहाँ फॉर्म होगा, इधर। Yes, sir. तो Yes, हम क्या sir. बोलेंगे, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर और 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इज इट क्लियर? 20 Yes. सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, सॉरी 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा ना Yes, sir. उत्कर्ष, इज इट ओके? यस सर समझ। अब जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल में है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज में है। डिफरेंस यही है, एग्जाम्पल में जो दिया है वो वैल्यू नहीं दिया है दो डिस्टेंस का, और तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड पूछा है इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस, और जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसमें वो डिस्टेंस पूछ दिया है, मतलब सम सेंटीमीटर। सो वहां पे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू, मतलब 2/3 4/3 व्हाटएवर बी द वैल्यू, दे से फाइंड आउट दिस वैल्यू। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन है, और सेम क्वेश्चन एक बार आईआईटी में पूछा था, और ये क्वेश्चन अभी तक सीबीएसई बोर्ड में पूछा नहीं था कभी भी, लेकिन 2 साल पहले, और मैं हर साल ये क्वेश्चन कराता था, 2 साल पहले ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का दे दिया। तो ज्यादातर बच्चा, क्योंकि ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, तो ज्यादातर बच्चा इसको नहीं करके आता था, और जिसने करके आया उसका बल्ले बल्ले,
और जो नहीं करके आया वो शावा शावा कर रहा था। इज इट ओके? Yes. तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी है। मैं पहले एग्जाम्पल वाला सॉल्व करा रहा हूं, फिर तुम्हें वो दिखा भी दूंगा कि एक्सरसाइज में क्या चेंजेस दिया है। और मैं थोड़ा क्वेश्चंस पहले पढ़ रहा हूं। क्वेश्चंस पढ़ने से पहले मैं थोड़ा इसके बारे में बता देता हूं। एक थीन लेंस है जिसको ऐसे करके रखा गया है और इसका नीचे एक मिरर को रखा गया है, प्लेन मिरर, और ये दोनों के बीच में एक क्या है कि एक लिक्विड है, ये है लिक्विड। तो यहाँ पे कितना लेंस हो गया? 2 लेंस हो गया। दिख रहा है ना अच्छा से लिक्विड? तो 2 लेंस Yes, हो sir. गया, एक है ये वाला, एक है लिक्विड वाला। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, धीरे धीरे सुनो। असिमेट्रिक बाय कॉन्वेक्स। सिमेट्रिक मतलब तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर 1, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 is equals to r, radius of curvature. Biconvex lens of radii of curvature r are made of glass of refractive index 1.5. तो refractive index of the lens दे दिया है 1.5. ठीक है, is placed on a layer of liquid placed on the top of the plane mirror as shown in the figure. दिख रहा है? As shown in the figure. An optical needle with its tip on the principal axis of the lens is moved along the axis until its real inverted image coincide with the needle itself. तो तुम लोग अगर ये प्रैक्टिकल करता तो ज्यादा मजा आता, देखता कि हम लोग ऐसे करके देख देख के पिन को सेटअप करते हैं। तो जब तुम यहां से देख देख के पिन को सेटअप करते हो तो जहां पे पिन सेटअप होता है वो पॉइंट होता है फोकस। और एक्चुअली इस साइड से देखोगे, यहाँ पे पिन रखोगे तो इसका यहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मिरर के कारण ये दोनों एक ही जगह पे होगा, है कि नहीं? बोलो पहले। Yes. तो पहला जो सेटअप है जहां पे हो रहा है, मतलब दोनों पिन एक ही जगह पे लगेगा, बिकॉज ऑफ वन इज इन्वर्टेड और इसका ये मिरर के कारण ये इधर आ गया। ये जो डिस्टेंस है, placed on the top of a plane mirror as shown in the figure, an optical needle with its tip on the principal axis lens is moved along the axis until the real inverted image coincide with the needle itself. The distance of the needle from the lens is measured to be x. तो ये जो x दिया है, इसी क्वेश्चन को जो एक्सरसाइज में दिया है, सम वैल्यू दे दिया, सपोज 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, दे गिव यू सम वैल्यू। अब क्या बोला है? ऑन रिमूविंग द लिक्विड लेयर। अब ये लाल वाला पार्ट को अगर मैं हटा दूं, जब मैं लाल वाला पार्ट को हटा दिया, क्या बोला? ऑन रिमूविंग द लिक्विड लेयर एंड रिप्लेसिंग द एक्सपेरिमेंट, द डिस्टेंस इज फाउंड टू बी y। अब जब मैं ये लाल वाला पार्ट को हटा दिया, ये y आया है, जो कि मेरा एक्सरसाइज में मानो बोल दिया ये 60 है, ये 30 है, लाइक दैट। इज इट क्लियर? या 60 है, 40 है, ऐसा कुछ। इज इट क्लियर? Yes, sir. मतलब x जो है विथ लिक्विड, y जो है विदाउट लिक्विड। ठीक है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। तुम्हें ये लेंस के लिए रख दो, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. और मैं इसको LIQ लिखने से अच्छा इसको सिर्फ L लिख रहा हूं और इसको खाली रख रहा हूं। खाली वाला लेंस का है, L वाला लिक्विड का है। क्लियर? Yes, sir. अच्छा, ये जो पहला वाला लेंस है, मानो इसका फोकल लेंथ है f1, दूसरा का फोकल लेंथ है f2 और कॉम्बाइन का फोकल लेंथ है f। इज इट क्लियर? कैन वी सपोज इन दैट वे? यस सर। तो ये जो x जो डिस्टेंस आया, ये कॉम्बाइन का फोकल लेंथ आया, मतलब 1/f, दैट इज 1/f1 प्लस 1/f2, और ये 1/f का वैल्यू है x। ये समझ में आया?
Yes, sir. ये समझ में आया? Yes, sir. कर्ष, इज इट ओके? यस सर। अब देखो, अगर मैं लिक्विड को हटा देता हूं तो बचता कौन है? F1 Only F1. So y is 1 by F1. F1 हाँ, and that is equals to refractive index of the lens is 1.5 minus 1, जो कि curve lens है, 1 by radius of curvature minus 1 by radius of curvature. So 1 by 2 into 1 by r plus 1 by r, that is 1 by 2 into 2 by r, that is 1 by r, जिससे मैं बोल सकता हूँ y जो है वही मेरा radius of curvature है. Is it clear? Yes, sir. और मेरा जो आंसर है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, x and y are given, तो we have to express the refractive index of the liquid in terms of x and y, because जो मेरा न्यूमेरिकल दिया था उसमें 60 और 30 है या 60 और 40 है, तो मैं x and y में निकालूंगा तभी उसका वैल्यू निकाल सकता हूँ. इज इट ओके और नॉट? Yes, sir. सो अब देखो, ये है 1 by x, ये है 1 by, सॉरी, f इज द 1 by x, f1 है y, और ये है f2. So from that, what about f2? 1 by x1 minus 1 by y1, 1 by x minus 1 by y. Can we write that? यस सर। Yes, sir. इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? x y minus x लिख सकता हूँ. Yes, sir. और ये जो लाल वाला लेंस है, ये कैसा लेंस है? कोई मुझे बोलो तो. कॉनकेव। कैसा कॉनकेव? प्लानो कॉनकेव। वेरी गुड, एक्सीलेंट. प्लेनो कॉनकेव. तो मैं इसको लिख सकता हूँ, लिक्विड जो मुझे चाहिए -1. अगर मैं रे इधर से ला रहा हूं तो मेरा पहला जो कर्व सरफेस है वो नेगेटिव आर है, और दूसरा जो कर्व सरफेस है इंफिनिटी है. इज इट satisfy with all of you? You all understand this? Yes, sir. यस सर। So from that, what we can say, NL -1, या इसको हाँ रखो R, हम इसको अगर माइनस को इस साइड में ले जाएगा, x minus y by xy. अच्छा, यहाँ पे मुझे R का भी वैल्यू मालूम है, वाई। y. वेरी गुड. तो मैं R के जगह पे भी y रख सकता हूँ, तो y कैंसिल कर सकता हूँ. सो इससे NL -1 मेरा क्या आया? 1 minus y by x आया ना? ठीक है. तो NL कितना आया? 2 minus y by x, या इसको 2x minus y by x में लिख सकता हूँ. समझ में आया? Yes, sir. इसका आंसर है 2x minus y by x. अब इसका मैं जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ये 9.38 एनसीईआरटी एक्सरसाइज. एनसीईआरटी का क्वेश्चन सब अच्छा क्वेश्चन है. अब तुम लोग ये सब भी आराम से कर सकते हो. ठीक है. सो अब इस क्वेश्चन में देखो, एवरीथिंग इज सेम. दे गिव यू वन डिस्टेंस इज 45 सेंटीमीटर, अनदर इज 30. तो ये है 45 सेंटीमीटर और ये है 30 सेंटीमीटर, और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसमें सॉल्व कर दिया है. द आंसर इज गिवन है L is 4/3. चेक करके देखो तो 4/3 आता है कि नहीं. आया? NL देखो, 2 into x, तो 2 into 45 minus y 30 by x 45. तो ये क्या हो गया? 90 minus 30 by 45 60 by 45. तो क्या हो गया? 15 4/3 आ गया ना? आया? Yes, sir. तो तुमने देखा मैंने क्या बोला कि इसका एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है, और जो सॉरी एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन था, और एक्सरसाइज में वैल्यू दिया हुआ है.
सीबीएसई बोर्ड जो क्वेश्चन दिया था वो वैल्यू देके दिया था, तो उसको एकदम पुख्ता आंसर चाहिए था। ठीक है, एग्जामिनर कैन गिव चेंज दिस वन, किसी को 60 कर दिया, 45 कर दिया, 60-30 कर दिया, तो वो अपना मन से चेंज कर सकता है। यू कैन गेट दिस वैल्यू। क्लियर? Yes, sir. दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने लास्ट क्लास क्वेश्चन में बोला है a right angle prism is placed before an object in two positions shown in the figure. The prism is made of crown glass with critical angle to 41 degree. Trace the path of the two rays PQ normal to the hypotension in figure and parallel to the hypotension. देखो सिंपल क्या बात है, कहाँ गया मेरा पेन? देखो ऐसे करके एक पहला क्वेश्चन है, एक ऐसे करके प्रिज्म है। ये क्वेश्चन एक बार दो बार सीबीएसई में ड्रॉ करने के लिए दिया था। ये है ए, ये है बी, ये है सी। ये एंगल जो है 90 डिग्री है और यहाँ पे पी क्यू दो पॉइंट है, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो पी क्यू है। तो इसका रे कैसा होगा? देखो पहला वाला का ऐसा गया, तो ये जो जाएगा ये 45 डिग्री होगा, होना चाहिए, है कि नहीं? एंड क्रिटिकल एंगल कितना है? 41 डिग्री। कामा 41 डिग्री। तो ये रे ऐसे आएगा, फिर ये रे कहां से जाएगा? इसको थोड़ा छोटा कर दो। ये रे ऐसे आएगा, फिर ये रे इधर मानो चला गया, और यहां से जो रे जाएगा ड्राइंग दिया ही हुआ है, ये रे ऐसे जाएगा, ये रे ऐसे जाएगा और ये रे फिर ऐसे आएगा। आके इसका इमेज उल्टा इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है, ये एक रे डायग्राम है। और दूसरा वाला जो क्वेश्चन दिया था कि प्रिज्म मेरा ऐसा है, एक्चुअली मैं जस्ट रफ हैंड से कर रहा हूं तो एग्जैक्टली 90 डिग्री नहीं हो रहा है। तो इसमें जो PQ है यहाँ पे है PQ, तो ये क्या करेगा? सर यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बेस से भी लाइट गया है। नहीं नहीं, ये तो एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का क्या है? ऑब्जेक्ट का हर एक पॉइंट इज अ सोर्स। तो यहाँ से भी गया, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, तो ये दो एंड मिल गया, मतलब ये वाला P है, ये वाला Q है, तो बाकी के लिए भी मिल जाएगा ना। जैसे मानो एक इंसान है, ये इसका अगर इमेज फॉर्म हो रहा है मानो ऐसे करके, हाँ ऐसे करके इमेज फॉर्म हो रहा है, तो ये बेसिकली इसको बता रहा है, ये बेसिकली इसको बता, हर एक पॉइंट कंटिन्यू होगा ना। ऐसा थोड़ी है जो शैडो बनता है तो आधा बनता है और बीच में से खाली रहता है, नहीं रहता है ना। तो ऐसे करके यहाँ पे भी देखो, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, तो सेम वैसे करके रे मुझे ले जाना है। ये एक रे गया, ये एक रे गया, ये आया। अब ये जो है इसमें ऐसे करके आएगा, फिर यहाँ से ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ऐसे करके, और ये ऐसे करके, हाँ ये एसएल अरोरा में दिया हुआ है, ये देख लेना। फिर ये इसका एकदम, ये दोनों एकदम पैरेलल होगा, मेरा थोड़ा पैरेलल नहीं हुआ, ऐसे करके चला जाएगा, तो ये P हो जाएगा, ये हो जाएगा Q, माने P डैश Q डैश, ये भी उल्टा इमेज फॉर्म होगा। ये दोनों एकदम सेम लाइन पे होगा, यहाँ पे थोड़ा ऊंचा नीचा हो गया। ठीक है, ये वाला एक थोड़ा अनट्रेंडी क्वेश्चन मैंने देखा है, एक दो बार एनसीईआरटी में पूछा है, मतलब बोर्ड एग्जाम में पूछा है। ठीक है, हेलो। Yes, sir. तो बाकी तुम्हारा
अब मोटा मोटी हो गया। एक तुम्हारा चीज मैंने नहीं पढ़ाया, वो है सिल्वरिंग ऑफ मिरर, क्योंकि वो तुम्हारा सिलेबस में नहीं है। तो अगर मेरा पूरा सिलेबस हो जाने के बाद मुझे कुछ टाइम मिले, क्योंकि मैंने कल भी सुना तुम लोगों को मार्च में एग्जाम है, तो अगर ऐसा होता है, सीबीएसई बोर्ड का कोई ठिकाना नहीं है, तो पहले मैं सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर जो एक्स्ट्रा है अगर सामान मिला तो करवा दूंगा, नहीं तो स्कूल एंट्रेंस के बाद, एंट्रेंस के लिए एग्जाम 12 का बोर्ड एग्जाम के बाद भी करा सकता है, लेकिन पहले जो बोर्ड का सिलेबस है वो एकदम अच्छा से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं वो सिल्वरिंग ऑफ लेंस तुम्हारा सिलेबस में है भी नहीं, मतलब पहले भी नहीं था, हाँ सिर्फ एंट्रेंस में पूछता है, तो मैं उसको अभी छोड़ रहा हूँ। अब फिर मैं नेक्स्ट क्लास से मैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे चला जाऊंगा, मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये वाला हो जाएगा तो रेंज पूरा कंप्लीट, फिर हम लोग वेव ऑप्टिक शुरू करेंगे, ठीक है? স্যার ओके। Yes, sir. স্যার এই জেরক্সটা দিবা বলছিল যে স্যার আরে একটা আমি সময় পাচ্ছি না রে, এই বন্ধ ফন্ধ এই ওই এতগুলো কাজে বিজি, আমি করতেই পারছি না। আমি যাই আচ্ছা দেখি, আচ্ছা স্যার কালকেও সেন্টারে যাব, যাই যদি আমি সময় পাই, আরে সময় স্যার পাচ্ছি না। কালকে ক্লাস হবে তো? হ্যাঁ হবে, চলো বাই। বাই।